Good morning, everyone. Welcome to the lecture of Water Resource Engineering. In a last lecture, we have studied about the floods. In today's lecture, we are going to start a new chapter, that is a hydrological analysis. And in this chapter, we are going to study about the design flood, how we can select the design flood, method of estimation of a maximum flood. We will do different examples based on these methods. So before going to start this chapter, I would like to discuss about the selection of a design flood. So before adopting any a flood control measure, it is necessary to know a maximum flood likely to occur and select the suitable design flood and a flood control projects. So design flood may be one of the following types of the flood, like a maximum probable flood, standard project flood, or a flood corresponding to a desired frequency of its occurrence. So let's discuss about the design flood. What is design flood? So maximum flood that any structure can safely pass, it is called a design flood, and is selected after the consideration of economic and hydrological factors. So basically the design flood is a flood adopted for a design of a flood control project. तो हम लोग कोई भी फ्लड कंट्रोल का प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो तब हम लोगों ने जो फ्लड यूज़ किया है, मतलब कि जो कंडीशन यूज़ की है, वो फ्लड को बोलेंगे डिज़ाइन फ्लड. मतलब कि वो फ्लड को हम लोगों ने यूज़ किया है फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ अ फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट. So the design flood is related to the project feature. For example, the spillway design flood may be a much higher than the flood control reservoir design flood, or the design flood adopted for the temporary coffer dams. राइट. सो बेसिकली डिज़ाइन फ्लड हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं, मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने कोई स्पील वे डिज़ाइन किया है तो उसके लिए हम लोगों ने फ्लड के लिए स्पिलवे डिज़ाइन किया है, तो उसकी जो डिज़ाइन होगी वो रिजर्वायर की डिज़ाइन जो होगी फ्लड कंट्रोल करने के लिए जो रिजर्वायर बनाया है उससे मच हायर होगी. राइट. So design flood is selected by considering the cost of a project to provide the flood control and a flood control benefits. So benefit can be categorized into two categories, like direct and indirect. So direct means tangible, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, व्हाट इज़ टेंजिबल एंड व्हाट इज़ इनटेंजिबल. सो प्रिवेंशन ऑफ अ डैमेज टू स्ट्रक्चर इन अ डाउनस्ट्रीम, disruption in a communication, loss of a life and property, damage to the crops and underutilization of a land. So these all are damages comes under the tangible losses. So basically while we are designing a structure for a flood control, then we should consider this direct or a tangible damages, and indirect damages, that are the money saved under insurance and a workman's compensation loss, higher yield from incentives, cultivation of a protocol lands, and elimination of losses arising from an interruption of a business, reduction in a disease resulting from an inundation of flood waters. So these all are damages comes under the intangible losses. So while we are going to design any structure for a flood control, then we should design and we should take a benefit direct and indirect. So when the structure is designed for a flood less than a maximum probable, there exists a certain amount of a flood risk to a structure, nor it is economical to design for 100% flood protection. So protection against the highest rate of floods is uneconomical because of the large investment and infrequent flood occurrence. So basically we should know these three definitions before going to start methods of estimation of a flood. So what is a standard project flood? So
The standard project flood is a flood that may be expected from the most severe combination of a meteorological and hydrological condition and that are reasonably possible in a region. So this is the estimate of a flood likely to occur from a most severe combination, जैसे कि meteorological and hydrological condition है. So which are reasonably characteristics of a drainage basin being considered but excluding a extremely rare combination, right? So it is computed from the standard project storm rainfall applying the unit hydrograph principle, and the standard project storm rainfall may be taken as the largest storm rainfall which has occurred in a region of a basin during the period of a weather record. So हम लोग ये जो लेते हैं वो कौन सा लेंगे, जो लार्जेस्ट स्टॉर्म अकर हुआ था वो पर्टिकुलर वेदर में, वो हम लोग लेंगे. उसके बाद है मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड. सो दिस डिफर्स फ्रॉम द SPF in that it includes the extremely rare and catastrophic floods and is usually confined to a spillway design of very high dams, and the SPF is usually around 80% of the MPF for the basin. So it is estimated from the maximum probable storm applying the unit hydrograph principle, and the maximum probable storm is a estimate of a physical upper limit to a storm rainfall over the basin, right? So वो क्या होती है, physical upper limit होती है particular basin की, वो हम लोग लेते हैं. और जो SPF हम लोग जो लेते हैं वो अराउंड 80% ऑफ द MPF होता है, ठीक है, पर्टिकुलर बेसिन के लिए. एंड डिज़ाइन फ्लड, सो जो मैंने बोला आपको आगे कि हम लोग जो फ्लड एडॉप्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के लिए, वो फ्लड को हम लोग बोलेंगे डिज़ाइन फ्लड, राइट. हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, जैसे कि स्पीलवेज है, ब्रिज है, फ्लड बैंक्स है. सो ये जो सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जिसके लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं. तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ अ मैक्सिमम फ्लड. सो द फॉलोइंग मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ अ मैक्सिमम फ्लड इन द रिवर. बेसिकली दिस क्वेश्चन इज very most important in a GTU examinations. Methods of a estimation of a maximum flood, or we can say estimation of a peak flood, right? So these all are the method, like a physical indication of a past floods, or we can say past flood mark method. Second, empirical formula and curves. Third, envelope curves method. Fourth, concentration time method. The next one is a rational method. उसके बाद आएगा ओवरलैंड फ्लो हाइड्रोग्राफ, उसके बाद आएगा यूनिट हाइड्रोग्राफ, एंड लास्ट है फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज़. सो ये सारी मेथड्स है जो हम लोग एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करते हैं मैक्सिमम फ्लड को, ठीक है. सो हम लोग एक एक देखेंगे. तो सबसे पहली है फिजिकल इंडिकेशन ऑफ अ पास्ट फ्लड्स और फ्लड मार्क्स एंड ए लोकल इंक्वायरी. सो इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या है, सो बाय नोटिंग द फ्लड मार्क्स और लोकल इंक्वायरी, डेप्थ, एफ्लक्स and other items actually at an existing bridge or on a weir in a vicinity, the maximum flood discharge may be estimated by using a Manning's or a Chase's equation, right? So the maximum flood that occurred in the past can be estimated from the flood marks left by the flood. मतलब कि लास्ट ईयर जो फ्लड आया था उसके फ्लड मार्क्स रह जाते हैं आपके पर्टिकुलर ब्रिज पे या वियर पे. So these marks are generally in a form of a floating debris or sticking to a banks or to walls at the structure or a river bank. And a reliable estimation of a flood marks can also be made by a making inquiries from a number of old peoples. Like हम लोग old people को भी पूछ सकते हैं कि ये जो flood marks आया था वहाँ तक flood था कि नहीं था. So generally such persons have the memory of a highest flood during their lifetime or during the time of the forefathers, right? तो उन लोगों को पता होता है. So
ये फ्लड डिस्चार्ज को एस्टिमेट करने की मेथड है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्लड मार्क्स अलोंग द रीच ऑफ रिवर आर कनेक्टेड बाय अ लेवलिंग और डिटरमाइन द वाटर सरफेस लेवल। हम लोग उसका वाटर सरफेस लेवल डिटरमाइन करते हैं। द स्लोप मतलब कि एस ऑफ द वाटर सरफेस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ हाइट लेवल्स, राइट। हाई फ्लड लेवल से हम लोग उसका एस डिफाइन कर लेते हैं। As a check, a bed slope of a river is also determined for the bed levels, and the bed slope and a water surface slope should be approximately equal. ठीक है, हम लोग चेक के लिए बेड स्लोप भी फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो बेड का स्लोप होता है वो और वाटर सरफेस का स्लोप होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हम लोग करेंगे द प्रोफाइल ऑफ अ रिवर प्लॉट कर देंगे पूरी, एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द रिवर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कॉल्ड आर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आफ्टर अज्यूमिंग द सुटेबल वैल्यू ऑफ मैनिंग कोफिशिएंट एन, द डिस्चार्ज इज कॉम्प्यूटेड फ्रॉम द स्लोप एरिया मेथड, जिसके लिए वी का इक्वेशन होता है जो हम लोगों ने एफएम में पढ़ा था। ठीक है, एफएम में आप लोगों ने मैनिंग्स का इक्वेशन पढ़ा था, जिसके लिए अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका इक्वेशन था 1/n r⁻²/3 एंड s⁻², 1/2, राइट। तो ये इक्वेशन के ऊपर से हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड डिस्चार्ज अगर फाइंड आउट करना है हमें तो हम लोग क्या करेंगे, Q/A कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। सो वेलोसिटी के इक्वेशन में Q/A रख देंगे, तो जिसको Q को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और A को सामने ले जाएंगे, राइट। सो ये सारे इक्वेशंस होते हैं उसको कैलकुलेट करने के। इक्वेशन के थ्रू अगर कैलकुलेट हो जाता है आपका, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर पीक फ्लड एस्टिमेट करते हैं एंड डिस्चार्ज कंप्यूट करते हैं कि फ्यूचर में कितना फ्लड आएगा। तो बेसिकली फिजिकल इंडिकेशन ऑफ अ पास्ट फ्लड मेथड में क्या करते हैं कि जो पास्ट में फ्लड आया था वो उसके मार्क्स रह गए होते हैं, कोई डेब्रिस वहाँ पे चिपकी हुई होती है वॉल के ऊपर, उसके ऊपर से हम लोग उसका उसको एस्टिमेट करते हैं कि कितनी हाइट तक आया था। ठीक है, हमारे पास हाइट एंड लेंथ होती है तो हम लोग उसका फ्लड का स्लोप फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि एस फाइंड आउट करते हैं। स्लोप के साथ साथ हम लोग रिवर बेड का भी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए हम चेक कर सकते हैं कि वाटर का जो स्लोप लेवल है वो दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट होने के बाद हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फाइंड आउट कर लेंगे, और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फाइंड आउट करने के बाद हम लोग जो मैनिंग्स का इक्वेशन है वो अप्लाई करेंगे। और इक्वेशन की मैनिंग्स का इक्वेशन क्या है, 1/n r⁻²/3 एंड s⁻1/2। ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फ्यूचर फ्लड एस्टिमेट कर पाएंगे। सो ये थी फर्स्ट मेथड एस्टिमेशन ऑफ अ पीक फ्लड की। अब हम लोग सेकेंड मेथड पे जाएंगे, वो है एम्पेरिकल फॉर्मूलाज एंड कर्व्स। सो वेरियस इन्वेस्टिगेटर्स गेव अ एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ पीक डिस्चार्ज. However, these formulas are applicable only for the type of catchment in a region for which they were developed. मतलब कि पर्टिकुलर फार्मूलाज हैं वो पर्टिकुलर रिजर्वायर और पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए ही डेवलप किया है और उसके ऊपर ही वो एप्लीकेबल हो पाएगा. सो दिस फॉलोइंग फार्मूलाज आर देयर, लाइक द फर्स्ट फार्मूला इज बुर्किली जाइगर फार्मूला फॉर यूएसए. ये यूएसए में यूज़ होता है. उसका इक्वेशन है Q = 412 A⁻³ राइट. सो इसके अंदर A क्या है, एरिया है. उसके बाद है डाइकन्स फार्मूला. सो डाइकन्स फार्मूला वाज डेवलप्ड फॉर अ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया. ठीक है, और वो इक्वेशन है C × A⁻³ ठीक है. उसके अंदर जो Q है, सो Q क्या है, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, वो आएगा Qmax में. एंड A है एरिया ऑफ द कैचमेंट एरिया. एंड C क्या है, तो C इज़ अ डाइकन्स कोएफिशिएंट. सो द मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड वैल्यू फॉर द कोएफिशिएंट C दैट इज़ 35. इसके अंदर आपको ये दिख रहा है CD. ये CD की जो वैल्यू थी वो मैक्सिमम वैल्यू थी 35. एंड द वैल्यू ऑफ C शुड बी सिलेक्टेड ऑन अ
बेसिस ऑफ अ लोकल एक्सपीरियंस. सो सी के लिए डिफरेंट कोफिशिएंट वैल्यू दी है. वो नॉर्थ इंडिया के लिए थी 11.4, सेंट्रल इंडिया के लिए थी 14 to 19 एंड वेस्टर्न घाट्स के लिए थी 22 to 25. ठीक है, तो ये वैल्यूज़ थी डिफरेंट सी की, जो डाइकन्स फार्मूला जो जब हम लोग यूज़ करते हैं तब वो वैल्यू अडॉप्ट करते हैं. उसके बाद एक नेक्स्ट फार्मूला था राइव्स फार्मूला. सो राइव्स फार्मूला was developed for a Tamil Nadu region and it is also used for a catchments in a South India and Karnataka and Andhra Pradesh. So उसका इक्वेशन है CR(a)⁻²/3. ठीक है, अगेन यहाँ पे C क्या है, रिवाइव्स कोफिशिएंट, Q है डिस्चार्ज इन अ क्यूमेक्स and A है एरिया ऑफ अ कैचमेंट दैट इज इन अ किलोमीटर स्क्वायर. So value of C is taken as a 6.8 for the areas within a 24 kilometer of a east coast, right? And C is taken as a 8.5 for areas which are between a 24 and a 116 kilometer from a east coast. मतलब कि 24 से 116 किलोमीटर के बीच में अगर होगा तो उसका 8.5 लेंगे. And C is taken as a 10 for a limited areas near a hills and mountains. And the maximum value for a C that is taken as a 30, right? maximum value हम लोग 30 तक ले सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट था इंग्लिश फार्मूला. सो इंग्लिश फार्मूला वाज डेवलप्ड फॉर अ कैचमेंट इन अ महाराष्ट्र, राइट? तो उसका इक्वेशन है Q इज इक्वल टू 124A, हाफ उसके हाफ में आएगा √A + 10.4 और आप लोग A + 10.4 रेज़ टू 0.5 भी कर सकते हो. सो ये है इक्वेशन इंग्लिश फार्मूला का, जिसके अंदर A है एरिया इन अ किलोमीटर स्क्वायर, Q है डिस्चार्ज, राइट? सो ये सारे इक्वेशंस थे एस्टिमेशन ऑफ अ पीक फ्लड के. सो ये इक्वेशंस को यूज़ करके हम लोग एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं. इसके अलावा के और दो इक्वेशन है मेयर्स फार्मूला. सो मेयर्स फार्मूला वाज डेवलप्ड फॉर अ कैचमेंट इन USA. अगेन इक्वेशन फॉर दिस इज Q इज इक्वल टू 176 P इंटू A⁻². इसके अंदर P क्या है, P है कोफिशिएंट दैट इज डिपेंड्स ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फ्लड. एंड दूसरा एक इक्वेशन है फुलर्स फार्मूला. दिस इज ऑल्सो डेवलप्ड फॉर अ कैचमेंट इन USA. And equation for this Fuller's formula, that is Q bar 1 + 0.8 log 10 into TR, जिसके अंदर Q है मैक्सिमम फ्लड, TR है ईयर्स, Q बार क्या है, सो वो है ईयरली एवरेज फ्लड, C है आपका कोफिशिएंट दैट इज़ वेरीज बिटवीन 0.18 to 1.88. सो ये सारे डिफरेंट इक्वेशंस थे, एम्पेरिकल फार्मूलाज थे जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्लड. अब नेक्स्ट है एनवेलप कर्व्स मेथड. सो एनवेलप कर्व्स मेथड बेसिकली क्या है, सो फॉर एरियाज हैविंग अ सिमिलर टोपोग्राफिकल फीचर्स एंड अ क्लाइमेटिक कंडीशंस are grouped together and all available data regarding a discharge flood formula are compiled along with the respective catchment areas. So इसके अंदर बेसिकली हम लोग करते क्या है, so for plotting the envelope curves, the maximum flood discharge for the catchment having a similar topographical features and a climatic conditions are determined. ठीक है, सबसे पहले हम लोग वो फाइंड आउट कर देते हैं कि जो सिमिलर टोपोग्राफिकल फीचर्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके अंदर मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज क्या क्या हुआ था. ठीक है, वो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं. उसके बाद द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज प्लॉट कर देते हैं. ठीक है, अगेंस्ट द एरिया ऑफ दैट कैचमेंट. Then a curve is drawn to envelope to highest plotted and scattered points, right? If the log paper is used, the envelope curve is usually straight line. हम लोगों ने अगर log paper यूज़ किया होगा तो वो जो होगा वो straight line में हमें दिखेगा. And the envelope curve can be used to determine the maximum flood discharge in a future for a different catchment areas. ठीक है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अलग अलग catchment areas के लिए flood forecast करने के लिए. Sanvar Sen and Karpov developed 2 envelope curves.
वन फॉर द नॉर्थन एंड सेकेंड फॉर द सेंट्रल इंडिया रिवर्स. सो आप फिगर में देख सकते हो कि एक आपको दिख रहा है रिवर्स इन अ नॉर्थ एंड सेंट्रल एरिया एंड रिवर्स इन अ साउथर्न एरिया, राइट. So if the available data for a catchment are a merger, the envelope curve developed for that region and can be used for a rough estimation of a maximum flood discharge. So the method is better than an empirical formula because the selection of coefficient on basis of a judgment is avoided. इसके अंदर हमें कोई coefficient के वैल्यू जजमेंटल बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है. तो इसीलिए ये मेथड एम्पेरिकल फार्मूला से काफ़ी बेटर है. हावेवर द कर्व्स हैव अ सेम लिमिटेशन एज दोज ऑफ अ एम्पेरिकल फार्मूलाज. जो एम्पेरिकल फार्मूला में लिमिटेशंस थी वो सेम यहाँ पे है. लाइक दोज कंसिडर ओनली अ एरिया ऑफ अ कैचमेंट एंड निग्लेक्ट द अदर फैक्टर्स सच एज द शेप, स्लोप एंड अ कैचमेंट, ठीक है. इसके अंदर ये जो सारे फैक्टर्स है उसको निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है. इसके अंदर सिर्फ एरिया ही कंसीडर करते हैं. तो दिस कर्व्स कंसीडर ओनली अ फ्लड रिकॉर्डेड इन अ पास्ट एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट स्टिल हायर फ्लड में अकर इन अ फ्यूचर and the curves developed by a Canver and a Karpov have been used as a guidance for determining the maximum flood discharge in a various project in India. सो उसके लिए एक इक्वेशन भी डेवलप्ड किया है. वो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू 3025A अपॉन 278A रेज टू 0.78. तो इसके अंदर A है वो क्या है, कैचमेंट एरिया है जिसको किलोमीटर स्क्वायर में हम लोग लेते हैं, एंड Q है आपका डिस्चार्ज, ठीक है. सो ये दो मेथड्स हम लोगों ने आज, तीन मेथड्स हम लोगों ने आज देखी है. सबसे पहले मेथड हम लोगों ने क्या देखी थी, फॉर पास्ट फ्लड मार्क्स मेथड. सेकेंड थी एम्पेरिकल फार्मूला मेथड एंड थर्ड थी एनवेलप कर्व मेथड. आगे की मेथड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तब तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर.